Also in the left or in the right, you mention your roll number, your name and your section. Then you start with aim of the experiment. Aim of the experiment and theory, they are to be directly copied from the manual that I have provided to you. No need to write the procedure. If someone has written, it's all right. Only in rule side you have to write everything. Once a page is over, number it and go to the next page and number that also. Page numbering must be there. Then after writing the theory, you write the instrumental theory. Instrumental theory means suppose you are using screw gauge, slide calipers, all these things, then the instrumental theory details are to be there, how to calculate least count, etc. If the experiment is an electrical connected experiment or an experiment related to optics, the ray diagram also has to be there. Diagram is to be done on the white side only. Then instead of writing procedure, you write directly observation table. Number of tables are there in the manual, you write them serially. And the blocks in the columns and rows, they should be kept blank. Then you write in the bottom of the tabulation, calculation, leave some sufficient space. Don't write conclusion there because after you complete, you will write the conclusion. You take a graph paper ready, A4 size graph paper, have a scientific calculator, have a 1 feet scale, pen, pencil, eraser. I advise you all to do the graph by using dark pencil or pen so that the photo that you will be taking will be very clear. Otherwise, those who are here in offline mode, they are always told to do the graph in using pencil. How to maintain the graph paper or what to do in the graph paper, that I shall tell you today at the time of graph experiment. What is the procedure? First of all, I will take your attendance. That is very, very important because only those students who are present in the class, they will be assigned assignment. So to the others, not. Once the assignment is obtained, so first of all, I will take the attendance within 10-15 minutes. I will complete that. Then I will give a brief introduction of the theory part and what we are going to do in the lab. After that, a video will be shown to you. That video describes how the experiment is conducted. Look at it, how experiment is conducted, what is the aim of the experiment, what is how the calculation is to be made, how the graph is to be drawn, what are the necessary things that you must write on the graph. All these things will be explained in the video, which may be of 30 to 1.5 hour duration. It may be of 35-40 minutes duration or maybe something like 70-80 minutes duration. During the video or just by the time of video, the technical assistant who is associated, he will share assignment in your Google Classroom. Immediately you download that assignment. That assignment is nothing but some data set. So you copy those data set to the respective tables and then complete the data. Complete it. All calculations necessary, draw the graph, do the calculation, write the conclusion. In the bottom, you write your name, roll number. On the graph paper also, you write name, graph paper, roll number. Then you have to submit everything what you have done by 6 p.m. There is no extension of time. That is strictly to be done. So keep these things in your mind. Very carefully you have to do this, and by 6 p.m. you have to take the PDF and submit it. If you are getting late, then there will be deduction of mark. So this you must remember. Any doubt if you have on this? Whatever I told, those rules cannot be changed. Only thing, if you have any doubt, you can ask.
So one Sir, doubt, sir. Yes, Suprasad. sir, we have to write our name, roll number in first page or at last we'll write. Last page on the graph paper also. Okay, sir. Sir, I All have the a Sir, doubt, pages sir. are to be written. percentage Sir, of I have earlier already All the, written all in the, the first page. one by one, one by one. All the pages are to be numbered. Yes, Satyavrat, what is your problem? Sir, you told us about to write the instrumental theory, sir. Sir, but in the sheet you have said there is no instrumental theory written, sir. So that's why I am saying, na, you keep some space available there. These all you have to submit. Sir, So sir, I have written the whole experiment, but there is no space for instrumental Yes, no, theory. you sir. should have, No space for that. you, Sir, as you have should already have, said, you have I already told written. that why I gave a point instrumental theory only for the same purpose. Sir, Okay, you have to we write it in thought the that last. the instrumental theory was inside Listen that, but first, it's not. listen first. Don't argue. Argument has no solution. No, sir, I'm not. I'm just asking, sir. फिर मेरे को सुन नहीं रहा है, फिर बात को पुटअप कर रहा है। मैं तेरा बात समझ गया। मैं Yes, sir. सिंपली बोल रहा हूँ कि आज के लिए अगर नहीं लिए हो तो लास्ट में आप लिख देना। मैं Okay, यही sir. बोल रहा हूँ, उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। उसको धैर्य और एक के साथ सुना होगा। आगे से वो बात नहीं सुनेंगे। आज Yes, sir. पहला क्लास है, इसीलिए तुम्हारा सर जो भी और किसको अनन्या सर क्या सर लास्ट percentage लास्ट of में error लिखेंगे, लिख- मतलब एक्सपेरिमेंट खत्म उसका होने के साथ बाद। पहले जो हाथ रेज किए हैं तो एक बार पूछा था, बार बार क्या, पहले उसको पूछने दे अनन्या जो हाथ रेज किया है। सर ऑब्जर्वेशन टेबल रूल साइज होगा कि वाइट साइड? मैं बोल चुका हूँ, एक्सेप्टिंग डायग्राम एवरी अदर थिंग विल बी ऑन द रूल साइड। ग्राफ जो है वो चिपकाओगे व्हाइट साइड में। ओके सर, थैंक यू सर। यस सुप्रसाद। सर जो परसेंटेज ऑफ एरर एक है ना कैलकुलेशन के बाद वो वो नहीं है, वो जहाँ पे बोला जाएगा वहां पे करोगे, वो उसी टाइम में बोला जाएगा। अमीश सर मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल और वाइट साइड में बना दिया। कैसे? मैं तो लिख दिया था क्लियरली रूल साइड। नाउ यू हैव टू राइट इट इन द रूल साइड because I have categorically told you in the last time. सर हम व्हाट्सएप चेक नहीं किए थे, हम डायरेक्ट इधर नहीं से। नहीं, वो चेक नहीं किए तो लिखा कैसे? सर ये मेल पे ऐसा आया नहीं था। बोलने से नहीं होगा। रूल साइड में आपको और एक बार लिख के उसको देना होगा। जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि थ्योरी कुछ पढ़ाना है। सायन सर आपने बोला लास्ट में लिखने के लिए, मतलब आज के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी है, सो वो सर एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद लिखते हो, क्योंकि पहले तो स्पेस नहीं नहीं, आप कैलकुलेशन से पहले टेबल तक खींच दिए हो। कैलकुलेशन से पहले अगर ज्यादा है या कैलकुलेशन के अंदर आप लिख सकते हो, मैं बता दूंगा उस टाइम में। ओके सर। सर हम उसे पीडीएफ में उसे पहले अटैच कर देंगे इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी को लिख के, तो चलेगा क्रॉप करके। वो दो फाइल होने से जो इवैल्यूएट कर रहा है उसको थोड़ा तकलीफ होता है। बहुत सारे कॉपी इवैल्यूएट करना पड़ता है, तो बेटर होगा एक पेजेस आगे पीछे कर देंगे, जैसे इंस्ट्रूमेंटल वाले थ्योरी वाले पेज को पहले रख देंगे। हाँ, वो अगर कर सकते हो तो अच्छा है। आप सोचो थ्योरी लिख दिए, उसके बाद थ्योरी तक का फोटो खींचे और इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी का पेज का फोटो वहां पे घुसा दिए, फिर उसके बाद अरेंज कर दिए। इफ यू कैन डू दैट, मैं जानता हूँ ये सब चीज में आप लोग ज्यादा माहिर हो, आप चाहो तो वो कर सकते हो। लेकिन मैं टीए को इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि किसी का इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी अगर लास्ट में लिखा है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा। ठीक है। बाकी एक चीज है, जो रूल साइड में लिखना चीज को व्हाइट साइड में लिखा है उसको मैं बोल रहा हूँ, तो रूल साइड में लिख के आ जाना, क्योंकि तेरे को फोटो खींचना है ना, तो फोटो जहां पे रूल साइड में खींचा है उसी को ही देगा, व्हाइट साइड को नहीं देगा। ठीक है। और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जो कंफ्यूजन होगा उसी टाइम में हम बता देंगे। बस ये छोटा सा चीज बता दिए, सो दैट स्टिल आफ्टर 2 PM you will have some time left to do it. That's why. Okay, I'm coming to the class. So now सर इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी हमें खुद से लिखना है या प्रोवाइड कर किया जाएगा हमें लैब के टाइम? कौन सा इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी तुमको जो स्क्रू गॉज मिलेगा, तो तुमको जो स्क्रू गॉज मिला
वो टीचर ने डाटा पे लिखा है कि पीच इज इक्वल टू 0.05 और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 50। तो फिर लिस्ट काउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। यही होता है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। तो जो डाटा शीट दिया गया होगा उसी में आपको देख के उसी के हिसाब से अपना जो डाटा शीट, किसी का पिच 0.1 होगा, किसी का 0.05 होगा, किसी का नंबर ऑफ डिवीजन 50 होगा, किसी का नंबर ऑफ डिवीजन 600 होगा। तो अपना जो डाटा मिला है उसी के हिसाब से काम करना, क्योंकि तुम लोग जो डाटा तुमको मिला है सिर्फ उसी को हम लोग इवैल्यूएशन के टाइम में चेक करते हैं। कहीं तुम दूसरों का डाटा को लिख दिए तो नहीं, कहीं दूसरों का कॉपी का पीडीएफ को तुम सबमिट तो नहीं कर दिए। ये सब हम केयरफुली चेक करते हैं इवैल्यूएशन के टाइम में। तो जो प्रॉब्लम है वो आप हमको पूछ लेना उसी टाइम में, और उसी टाइम में ही उसको खत्म करके देना। ऑनेस्टी रखना। अपलोडिंग टाइम आप कोशिश करना 40-45 तक आप अपलोड कर देने के लिए, so that panic nahi ho. What we discussed yesterday, we discussed the differential equation of motion for simple harmonic motion and we wrote its solution. This solution is the equation of motion. Now, in writing this solution, we have included three important constants. One constant is defined earlier to solving the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक कांस्टेंट को हम लोग ऐड कर दिए थे जिसका डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना है, सेम। बाकी जो दो कांस्टेंट है ये दोनों एक्चुअली आता है कहां से? ये दोनों आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट से, जिसका वैल्यू बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो तीन कांस्टेंट हम लोग जब एक ऑसिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, हर एक ऑसिलेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसका एम्पलीट्यूड एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब एक एक कैरेक्टरिस्टिक है। टोटल एनर्जी जो उसके अंदर है ऑसिलेशन के टाइम में, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हमारा एम है? आपको मैं बताया था, I told you that I want to develop an equation which I will call as the equation of motion of the oscillation. Why that is equation of oscillation? Because it should be able to give every information regarding that oscillation. So what are information I need? Every oscillation has an amplitude, has a time period, has an energy of oscillation. Can I get these values from this differential, from this equation? That is the first question. If it is, then I can say yes, once the equation of motion for SHM is written, therefore I can derive the characteristics of oscillation. Second, suppose I want to know the oscillation state at a particular instant of time. Now, what I mean by saying oscillation state at a particular instant of time, when I want to know oscillation state at a particular instant of time, I want to know the displacement at that instant, velocity at that instant, acceleration at that instant, momentum at that instant, force acting on it at that instant, kinetic energy at that instant, potential energy at that instant, total energy at that instant. ये सब क्या इन्हीं से निकल आएगा? इसी चीज को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकला, जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एसएचएम बोल के डिमांड करने जा रहे हैं, क्या ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशन को दे सकता है? इस चीज को पहले चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन of constants
A omega naught and phi। इन तीन कॉन्स्टेंट्स का हम लोग अभी इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑसिलेशन का उसको बता रहा है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, मैं आपको अभी अभी बताया। थोड़ा इंक बनने दो। ओके, तो पहले हम लोग इंटरप्रेट करेंगे व्हाट इज ए। जब ऑसिलेशन होता है किसी भी इंस्टेंट का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में किसी भी इंस्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस पाई। प्लस लेने से भी चलेगा, माइनस लेने से भी चलेगा। तो यही इक्वेशन से हमको किसी ने अगर पूछा कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, x मैक्सिमम होगा जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस पाई का मैक्सिमम वैल्यू, और ये +1 होने के नाते ये हो जाएगा a। अभी अगर हम ऑसिलेशन में डायरेक्टली चलेंगे तो x का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब पार्टिकल एक्सट्रीम में होता है, और उसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू एम्पलीट्यूड होता है। सो इफ यू राइट द इक्वेशन फॉर SHM, whoever is in the place of A must be representing the amplitude of SHM। देखो ये कॉन्स्टेंट्स जो इस इक्वेशन में है वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का वैल्यू हमको दे रहे हैं, वो बात बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे ओमेगा नॉट को इंटरप्रेट करने के लिए। हमको याद रखना है कि ओमेगा नॉट जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के टाइम में वो नहीं मिला है, उससे पहले था। और हमको ये बात भी याद करना है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई एम, where k is the force constant and m is the mass of the particle who is oscillating। हम लोगों को पता है x r t is equal to a sin omega naught t plus or minus phi। कोई भी इंस्टेंट का x वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अच्छा, एक टाइम पीरियड के बाद, आफ्टर वन टाइम पीरियड, जिसको हम लिखेंगे क्या, एक्स आर टी प्लस टी। पहले आपका टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना है इस फॉर्मूला के मुताबिक आप निकाले, उसका एक टाइम पीरियड के बाद डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है उसको निकालने में जा रहे हो। तो कैसे निकालोगे, ए साइन ओमेगा टी के जगह पे पुट करोगे टी प्लस और माइनस। तो ये आपका क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस और माइनस। लेकिन आप जानते हो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है, सेम स्टेट सेम डिस्प्लेसमेंट और एक बार चला आता है। सिंस एक्स आर टी इज इक्वल टू एक्स आर टी प्लस टी, ये आपको पता है। सो ए साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस पाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट
t plus or minus pi. Is it clear? ये बात समझ में आया या नहीं आया, आप बोलो। आप लोग सब इन्वॉल्व हो या नहीं? कोई कुछ नहीं बोला है सत्यव्रत? यस सर। कोई कुछ नहीं यस बोला सर, है? नो सर। यस ये सर समझ में रहे हैं। आया या नहीं? सर ये बात समझ में Yes, आया sir. या नहीं? यस यस सर, सर आ आ रहा रहा है है सर, लिख रहे हैं एक्चुअली। यस सर, नोट्स बना रहे हैं सर। यस सर। आप हमको बोलो कि इक्वालिटी कब पॉसिबल है? यहाँ पे ओमेगा टी प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस पाई है, यहाँ पे खाली ओमेगा नॉट टी प्लस पाई है, तो ये इक्वालिटी कब पॉसिबल होगा? बोलो। आपको किसी ने अगर बोलता है साइन थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए? सर 0 होना चाहिए। बस एक ही पॉसिबल वैल्यू है। सर बहुत छोटा वैल्यू अगर हुआ नेग्लिजिबल एकदम। Delta should be equal to n into 2 pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3. Yes or no? यस सर। तो यस सर यस। आप बोलोगे 2 पाई नहीं लेके पाई लेते तो भी चलता, लेकिन मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। अगर मैं साइन के बदले कॉस लेता तो उस केस में भी डेल्टा को n into 2 पाई लिखता, और n का सबसे जो छोटा नॉन जीरो वैल्यू है ये 1 है। यस सर। नहीं सर ब्लर आ रहा है सर थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, तो ठीक है। पूरा नहीं नहीं clear सर, है? ठीक है। सर राइट अपर का आ रहा है। नहीं आप नहीं, उसको ठीक से ठीक है। इन नहीं किया होता है, इन करो ठीक से, क्योंकि मैं 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हूं। एक डिवाइस का कैमरा यूज कर रहा हूं, दूसरा डिवाइस में पिन करके देख रहा हूं कि कैसा आ रहा है। अगर मेरे में ट्रांसपोर्ट ठीक है मतलब मेरा नेटवर्क ठीक है। यस सर। तुम्हारा नेटवर्क अगर प्रॉब्लम है तो साइन आउट करके इमीडिएटली और एक बार साइन इन कर सकते हो। सो दिस शो दैट ये t क्या है? t is the smallest time interval after which x returns to previous value. And t is not equal to 0. टाइम इंटरवल तो कुछ रहेगा ना, टाइम पीरियड तो कभी 0 नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इनटू टी मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई। स्मॉलेस्ट इंटरवल की वजह से 2 पाई। 2 बार ऑसिलेशन होगा तो ओमेगा इनटू 2t होगा, तब ये 4 पाई होगा। सो दिस गिव्स यू ओमेगा टी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। यू सी, ये डिटेल एनालिसिस आपको बता दिया कि ये जो ओमेगा नॉट नाम का क्वांटिटी को आप पहले डिफाइन किए थे इक्वेशन लिखने के टाइम में, वो प्रैक्टिकली टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के साथ रिलेटेड है और ये फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेटेड है। f इज इक्वल टू 1/t। पहले से आप देखे थे कि ओमेगा नॉट का डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन के साथ सेम है। सो ओमेगा नॉट डायमेंशन is same as frequency, but differs from frequency by angular factor टू पाई। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से उसका वैल्यू सेम नहीं है, बट डायमेंशनली दे आर इक्वल। सो ओमेगा नॉट इज कॉल्ड एज
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी वजह से उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इसके आगे कोई भी हमारे सामने इस तरह का इक्वेशन लिखेगा तो हम लोग समझ लेंगे कि जहां पे ओमेगा नॉट जहां पे है वो एक्चुअली हम लोगों को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रहा है। और एक बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गया तो टाइम पीरियड में मिल जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को वैल्यू को आप ऐसा भी लिखे हो √k/m, तो इसका मतलब आप t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट can be written as 2π√m/k। यहां तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Any doubt if anyone has? देखो उस इक्वेशन के अंदर जो कि सॉल्यूशन के रूप में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखे थे, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे निकल गया देखो। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्पलीट्यूड एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ उस इक्वेशन से निकल रहा है। कोई कुछ पूछना चाहेगा? अच्छा, तो आप लोग देखें फाई क्या है उसके बारे में बाद में हम लोग इंटरप्रिटेशन करेंगे। फाई को फेज का मतलब क्या है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाया हाउ द सॉल्यूशन गिव्स यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑसिलेशन, द एम्पलीट्यूड, द टाइम पीरियड, द फ्रीक्वेंसी। I will show you also how the equation of motion helps you to get the energy. But before that, let me tell you how to get the state of oscillation. This is very straightforward. पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कोई इंस्टेंट t में उसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? a का वैल्यू पता है, एम्पलीट्यूड पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है क्योंकि टाइम पीरियड पता है, तो आपको कोई भी इंस्टेंट का x आ गया। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dx/dt कर दो, ओमेगा a cos ओमेगा नॉट t प्लस और माइनस 5। वेलोसिटी भी t इंस्टेंट का आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है, d2x/dt² कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और यहाँ पे एक चीज मार्क करो, वेलोसिटी का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? ओमेगा है, जब cos 1 होगा, cos का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू +1 है। देन एक्सेलरेशन को अगर निकालना चाहते हो तो dv/dt, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a cos, अच्छा इसको और एक फॉर्म में लिख दो, ओमेगा a, सॉरी इसको थोड़ा मैं और कुछ दिखाना चाहता हूं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस और माइनस 5, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा √स्क्वायर माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t प्लस और माइनस 5, तो ओमेगा √स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। So instantaneous velocity can be written as omega a cos omega naught t plus or minus 5, or you can write this as omega √square minus x square. तो यहाँ पे v मैक्सिमम का वैल्यू भी आप अगर चाहते हो तो वो भी आ जाता है।
Then if you want to get the acceleration instantaneous, you get dv by dt. So this is minus omega a sin omega square sin omega naught t plus or minus 5. So this is equal to minus omega naught square x. ये एक इक्वेशन है एंड ए का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो ओमेगा मॉड वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑफ कोर्स। आप थोड़ा इसको ओमेगा नॉट करना, मैं भूल गलती में ये चार्ट को मतलब उसको थोड़ा रीड कर रहा हूं। ओके, आपको मोमेंटम चाहिए, कोई बात नहीं, मास इनटू वेलोसिटी कर दो, तो एम ओमेगा नॉट रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, कोई बात नहीं, आप एम बी स्क्वायर कर दो, आप एम ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये आप पहले से करके रखे हो 11th क्लास में, उसी को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आपके एक्स स्क्वायर ही है डायरेक्ट। टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो, आर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देन आपके एक्स स्क्वायर के इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। तो के को आप लिख सकते हो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर। अब देखो ये जो इक्वेशन जो आपको टी इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट देता है, वहां से टी इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो टी इंस्टेंट का वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी से मोमेंटम, मतलब डिस्प्लेसमेंट से मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट से काइनेटिक एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट से टोटल एनर्जी, और कैरेक्टरिस्टिक से स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी और कैरेक्टरिस्टिक से टोटल एनर्जी। यही सब आपको चाहिए था ना, ये तो मिल गया। तो एक लाइन में बोलने से अगर आपके पास मास ऑफ द पार्टिकल पता है जो ऑसिलेट कर रहा है और उसके साथ सिर्फ एक्स टी के साथ बदलने वाला इक्वेशन पता है, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में सब इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, चाहे उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एटसेट्रा, चाहे किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, एवरीथिंग। So not only you get the instantaneous state, motion state, but also you got the characteristics of oscillation, as well as you could see how the state of oscillation is evolving with respect to time. This is why we call this as equation of motion of undamped SHM, and that differential equation that we solve to get this is called as differential equation of motion of undamped SHM. So any question if on this you can ask me. कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ से आया, उसको सॉल्व करके इक्वेशन ऑफ मोशन आया, और उस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों को सब कुछ मिल गया रिगार्डिंग ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इस चीज को केयरफुली मार्क करो। एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन?
सब लोग लिख लिए जो जितना लिखना चाहता था? यस सर। Yes. किसी को कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हो, कोई डाउट? चलिए हमारा समझ को और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। The differential equation of motion of an SHM is given by 0.2 d square x by dt square plus 1000 नहीं, इसको और थोड़ा लो, 10 to the power 4 x is equal to 0. Find, अच्छा, all quantities are in SI. Find, क्या क्या निकालना है? Time period of oscillation, force constant of oscillation, कोई निकाल सकता है? कुछ रास्ता मिल रहा है? एक एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ऐसा होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा और फोर्स कांस्टेंट कितना होगा? अरे बोलो थोड़ा, आपको कुछ रास्ता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यस सर। कितना होगा? फोर्स कांस्टेंट कितना होगा बोलो? कितना? क्या बात हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है रे? ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे एसएचएम का, तुम पढ़ के आ रहे हो सर तो 10 to the power 10 to the power 4 होगा। ये 10 to the 4 लेकिन 10 to the power 4 बोलना गलत है, यूनिट भी बोलना पड़ेगा। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखते हैं। एक फॉर्म m स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस kx is equal to 0 और दूसरा लिखे थे d स्क्वायर x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x is equal to 0। तो पहले आपको देखना पड़ेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा फॉर्म है। पहला फॉर्म है तो ये आपका मास है और ये आपका k है, तो k हो गया 10 to the power 4। SI में बोला गया है इसीलिए न्यूटन पर मीटर। मास क्या होगा? 0.2। SI में बोला गया है kg। अभी वो पूछा है टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट कैसे निकलेगा? ओमेगा नॉट इज रूट ओवर k by m, अंडर रूट ऑफ के बाई एल। बस आगे आने नहीं टाइम पीरियड। आ गया सर। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी ने बदल के थोड़ा ऐसा कर देगा तो सोचो, मैं एक एग्जांपल पे बोल रहा हूं। ओके, 10 to the power 2 pi या pi स्क्वायर इंटू 10 to the power 4x और आपको पूछा जाएगा कि उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या देता है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया मतलब टाइम पीरियड आ गया। अगर इस तरह देके वो फोर्स कांस्टेंट पूछेगा, सोचो, तो जरूर उसको मास भी देना होगा।
क्योंकि फोर्स कांस्टेंट ओमेगा नॉट निकलने के बाद फोर्स कांस्टेंट निकलने के लिए मास भी चाहिए। क्या ये बात को समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली देख के कुछ इंफॉर्मेशन एसएचएफ के बारे में निकालना तकलीफ हुआ क्या समझ में नहीं आया? यस, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर? साइलेंट मत रहो, इंटरेक्शन करो क्लास के अंदर। नो सर। No, sir. तो क्वेश्चन को वो ऐसे दिया, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2, the equation of motion of an SHM is xt is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 3. Find amplitude, time period, x in centimeter, all quantities are in CGS. सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन में वो बोलता है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ SHM। यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी if mass is 100 ग्राम। क्या इस इंफॉर्मेशन से आप इतना सारे चीज निकाल सकते हो? आपको लग रहा है रास्ता कोई है? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। बोलो एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। यूनिट मत भूलना, 2 बोल रहे हो कोई। अच्छा, टाइम 102 सेकंड। टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की जगह पे 100 पाई है तो 1/50 सेकंड हो गया। टाइम पीरियड निकल गया। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? t इक्वल टू 0 पे x0, तो ये हो गया 2 sin t की जगह पे 0 हो गया तो पाई बाय 3। sin पाई बाय 3 का वैल्यू पता है 2 into √3/2, तो ये हो गया √3 सेंटीमीटर। वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी कैसे निकलेगा? ओमेगा नॉट √² माइनस x²। t इक्वल टू 0 पे पूछा है, एम्पलीट्यूड पता है, ओमेगा नॉट पता है, x नॉट भी आ गया। ये कहां गया x नॉट? ये √3 सेंटीमीटर। पुट कर द वेलोसिटी आ गया। एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x। x का वैल्यू 0 सेकंड में पता है, पुट कर दो, ओमेगा नॉट पता है, एक्सेलरेशन आ गया। फिर वेलोसिटी t इक्वल टू 0 में पता है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। हाफ mv नॉट स्क्वायर, हाफ m into ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। हाफ kx नॉट स्क्वायर, k कितना है? m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। क्या इसमें किसी को डाउट हो रहा है? इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आता है तो? नो सर। No, sir. नो सर। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट बोलता है कि टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर। हाफ टोटल एनर्जी क्या है? ओमेगा नॉट स्क्वायर स्क्वायर। तो ए नॉट तो पता है, ओमेगा नॉट तो पता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड अगर इस तरह का सवाल आता है
तो क्या आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहोगे? मतलब आर यू कॉन्फिडेंट? यस सर। ओके, मैं फेज को आऊंगा, फेज में आने से आपको और इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा। नहीं, पहले फेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। और जो प्रोसीजर हम अडॉप्ट किए थे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, वही प्रोसीजर अडॉप्ट करके डैम्प्ड ऑसिलेशन को बहुत ही क्विकली हम कवर कर देंगे। क्या प्रोसीजर था? पहला स्टेप, वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहा है उसका सब ऐड करके नेट फोर्स निकालो। न्यूटन सेकेंड लॉ लिखो, एफ नेट इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स की जगह पे वो जो ऐड करके निकाले हो उसको सब्स्टिट्यूट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन पे कहाँ पे एम्पलीट्यूड है, कहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, कहाँ से टाइम पीरियड मिलेगा, ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यही तरीका हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर में ही अडॉप्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं फेज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहता हूं। Concept of phase. In oscillation. ये फेज होता क्या है? तुम लोग एक चीज देखते हैं ऑसिलेशन का, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए एक्स इंस्टेंट का जो है वो है ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस पाई, ठीक है। और आपको पता है किसी भी इंस्टेंट का अगर x आ गया, आपको सपोज कोई भी इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना है पता है, तो वो आपको दे देगा v। कैसे? ओमेगा नॉट रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके, और यहीं से आ जाएगा एक्सेलरेशन। कैसे? माइनस ओमेगा नॉट एक्स ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। यहीं से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। कैसे? हाफ एम ओमेगा नॉट रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं से आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। कैसे? हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, अगर उसका किसी भी इंस्टेंट का एक्स वैल्यू पता है ना, तो वहां से आपको उस इंस्टेंट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ निकल जाएगा। सो वास्तव में देखें तो किसी भी इंस्टेंट का ऑसिलेशन स्टेट एक्स ही दे देता है। अकेला एक्स ऑसिलेशन स्टेट को बता देता है किसी भी इंस्टेंट का, क्योंकि एक्स अगर पता है, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, तो किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी, उस इंस्टेंट का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ आप निकाल लो। सो किसी ने अगर आपको पूछता है हु गिव्स और डिस्क्राइब्स द कंप्लीट ऑसिलेशन स्टेट एट एनी इंस्टेंट, आपका आंसर क्या रहेगा? बोलो। डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पहले से पता है तो किसी भी इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट उस इंस्टेंट का कंप्लीट स्टेट को बता देता है, कंप्लीट ऑसिलेशन स्टेट। लेकिन ये एक्स निकलता कहां से है? एक्स हो गया तो सब कुछ आ गया, तो एक्स आता कहां से है? एक्स आता है इस एंगल से। ये जो ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस पाई है ना, यही टाइम का फंक्शन। किसी भी इंस्टेंट में ये ओमेगा नॉट टी प्लस माइनस पाई अगर पता है तो ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस पाई कर दिया तो आपको एक्स मिल गया, एक्स से स्टेट ऑफ ऑसिलेशन आ गया। तो वास्तव में देखा जाए तो
truly, this actually gives the state of motion at t. हम लोग जानते हैं x पता होगा तो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन x पता करने के लिए ये चाहिए। और वास्तव में देखें तो कोई भी इंस्टेंट का ये अगर पता है, जो कि एक आर्गुमेंट है, साइन का एंगल है, वही सब कुछ स्टेट दे देता है। इसीलिए इसी को स्टेट एंगल या फेज एंगल बोला जाता है। So in SHM, ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस फाइव इसी को स्टेट एंगल या फेज एंगल, स्टेट का मतलब फेज भी है, टी बोला जाता है। कोई भी इंस्टेंट का, और देखो कोई भी इंस्टेंट का ये फेज एंगल जानने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, ओमेगा नॉट और आई क्या है, t इक्वल टू 0 पुट कर दो तो फेज एंगल कितना हो जाता है, प्लस माइनस 5। तो इसीलिए प्लस माइनस 5 को फेज एंगल t इक्वल टू 0 बोला जाता है और इनिशियल फेज एंगल बोला जाता है। और पूरा ओमेगा टी प्लस माइनस 5 को फेज एंगल t बोला जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, फेज एंगल t इंस्टेंट का gives x which gives state, लेकिन x is oscillating with time। क्या ये फेज एंगल भी टाइम के साथ ऑसिलेट कर रहा है? बोलो। यस सर। नो, ये तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप ध्यान से बात करो, मेरे को किसी ने अगर बोलेगा कि तू ग्राफ खींच, इस तरफ ओमेगा नॉट टी प्लस और माइनस 5 को ले और इस तरफ टी को ले, कहां से ग्राफ शुरू होगा? 5 से। फिर उसके बाद ग्राफ क्या होगा? इंक्रीज ओनली इंक्रीज इन ए linear manner. This is a linear equation. So phase increases linearly with time. बट आपको किसी ने अगर पूछेगा x को t के साथ प्लॉट करके देखो, तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा है। x is oscillating with time. ये आपका x0 है जो कि t इक्वल टू 0 पे। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है कि देखो, जो फेज एंगल आपको स्टेट दे रहा है ऑसिलेशन में, वो फेज एंगल अपना ऑसिलेट नहीं कर रहा है, वो x को ऑसिलेट करा रहा है। एक्चुअली फेज एंगल x को ऑसिलेट नहीं कराता है, क्योंकि वो साइन इन्वॉल्व है, इसी के वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर? या कोई तकलीफ हो रहा है इसमें? और एक चीज मार्क करो, फेज एंगल सिर्फ टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है, क्योंकि टाइम बढ़ता ही रहेगा। फेज एंगल ओमेगा टी प्लस और माइनस 5 इंक्रीजेस विथ टाइम। क्या बोल सकते हो कौन सा रेट में? रेट कैसे निकाला जाता है? डिफरेंशिएट क्या करके? टाइम के साथ डिफरेंशिएट डिफरेंशिएशन कर दो।
क्या आएगा बोलो, बोलो क्या आएगा? ओमेगा ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट। मतलब फेज ऑफ ऑसिलेशन एसएचएम में जिस रेट में इंक्रीज करता है वो एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ सेम है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली आपको टाइम देता है, टाइम पीरियड देता है, फ्रीक्वेंसी देता है, उसके साथ इस रेट में फेज ऑफ ऑसिलेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है उसको भी देता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। सोचो, और फेज बढ़ता ही जाता है ऑसिलेशन का टाइम के साथ। And SHM is given by d square x by dt square plus 2 pi into 10 to the power 4 x is equal to 0. All quantities are in SI. If phase of oscillation at t equal to 0 is pi by 2, what is phase of oscillation at t equal to, कोई भी टाइम ले लो, 2 सेकेंड, क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप निकाल सकते हो इस बात को? Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. तो क्या t इक्वल टू 2 सेकेंड में फेज क्या होगा निकाल सकते हो? क्या दिया है आपको? गिवन दैट I इक्वल टू पाई बाई 4, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 4। तो t फेज कितना होगा? t ओमेगा नॉट t प्लस पाई बाई 4। आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिए? माइनस क्यों नहीं लिए? क्योंकि पाई का वैल्यू प्लस करके पहले से वो दिया है। पाई बाई 2 है कि 4 है? सो पाई बाई 2। समझ में आया? इस तरह का प्रॉब्लम आपको इसी रिलेटेड प्रॉब्लम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और पोस्ट ऑसिलेटर में भी पूछा जा सकता है। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। No, sir. तो आज लैब क्लास No, है, sir. लैब क्लास है इसलिए अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग शुरू कर देंगे, कल तो नहीं है परसों, डैम्प्ड ऑसिलेशन। मेरा टारगेट है कि इसी वीक में डैम्प्ड ऑसिलेशन खत्म होगा। ओके सर। क्योंकि ये प्रोसीजर हम डिस्कस कर दिए, सेम प्रोसीजर में हम डैम्प्ड और पोस्ट ऑसिलेशन को पढ़ाते चलेंगे। कुछ बस मॉडिफिकेशन ही बताते चलेंगे। इसको अगर ठीक से समझे हो तो आगे कोई तकलीफ नहीं होगा। बाय। Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अटेंडेंस। Thank you, sir. Sir, attendance. अटेंडेंस लिए नहीं सर, चले गए। Sir, चले गए। नहीं सर है ना? सर, attendance. सर चले गए। चले गए। साहू हेलो हेलो सर, क्या क्या बोले सर, क्या क्या बोले फिजिक्स में क्या